So students, welcome back to my channel, that is The Educator. Today we are going to start our General English Speaking part 51, in which we are going to discuss about the same topic, that we will discuss about behavior of pronouns and some another forms of pronouns. So students, let's start our General English Speaking part 51. So students, let's start our General English Speaking part 51, in which we are going to discuss about the same topic, that we are going to discuss about behavior of pronouns, means सर्वनाम के व्यवहार. So let's move forward. If the collective noun conveys the feelings of separateness or division, the pronoun placed should be in the plural sense. Example, the jury were divided in its decision. The committee were divided in its opinion. Okay, so there is a basic some rule here which I am going to discuss today. If the collective noun, यदि कलेक्टिव नाउन वो होता है, ऐसी संज्ञा होती है जो सब कुछ इकट्ठा करके चलती है, जो ऐसी संज्ञा जिसमें हमें एक कलेक्टिवनेस दिखाई देती है किसी सब्जेक्ट की, वस्तु की, किसी भी चीज़ की, तो हम उसको कलेक्टिव नाउन या कलेक्टिव संज्ञा बोलते हैं. कन्वेज द फीलिंग्स ऑफ सेपरेटनेस, यदि वो ऐसी भावनाओं को, मतलब सेपरेट करने का मतलब हो गया कि अलग थलग करना, तो वो अगर अलग थलग करने की भावनाओं को प्रदर्शित करती है, या डिवीजन या बांटने की भावनाओं को प्रदर्शित करती है, द प्रोनाउन प्लेस्ड शुड बी इन द प्लूरल सेंस. तो क्या होगा, जो सर्वनाम जो हम प्लेस करेंगे, जो भी सर्वनाम हम वहां पे रखेंगे, शुड बी इन द प्लूरल सेंस, तो वो हमेशा बहुवचनीय रूप में होना चाहिए. ठीक है. एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में हो गया, द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन इट्स डिसीजन. So here you can see the sentence is basically a past tense related sentence and it means the jury. So jury is basically, you have seen, jury is basically a group of people, a group of highly intellectual people who basically gives decision immediately at that instant of time. So you must have seen in at the cinema hall etc. or at judges, some judges are there, they actually see the performance of the artist and movies etc. Then after that they discuss with each other कि what kind of movie is this movie good or the actors were good, so they decide with each other and after that they try to give their final opinion. So in this case also the jury were divided in its decision, मतलब जो jury थी, जो आपस में जो निर्णय करने वाले जो लोग थे, were divided, वो बटे हुए थे in its decision, अपने निर्णय लेने का जो उनका तरीका था वो सब उसमें बटे हुए थे. सारी जो जूरी के मेंबर थे उनका कुछ अलग अलग निर्णय था देने का, मतलब वो एक मत नहीं हो रहे थे एक डिसीजन पे. बेसिकली इट मींस द जूरी वर डिवाइडेड इन इट्स डिसीजन. तो जो जूरी थी, जो ग्रुप ऑफ पीपल था, जो निर्णय देने वाला था, वो एक निर्णय पर नहीं निकल के आ पा रहे थे, वो लोग अपने अपने निर्णय पर बटे हुए थे. ठीक है. तो ये बेसिकली पास्ट टेंस रिलेटेड सेंटेंस हो गया. द कमिटी वर डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन. This sentence is also a past tense related sentence. Here you can see committee is basically a noun also. Committee also belongs to somewhat like jury. You must have seen committees in our day-to-day life, like social committee, social welfare. Usually people do, so they make committee in which they collect money from people, and there are a lot of members there who by their own choice they join that committee, or they try to help people by giving or donating money. So in this case, the committee were divided in its opinion. So it means वो कमेटी जो थी वो भी अपने ओपिनियन, अपने निर्णय लेना या अपने सुझाव लेने के न दे पाने की वजह से बटी हुई थी, मतलब वो एक सुझाव नहीं दे पा रहे थे. ठीक है. द कमेटी वर डिवाइडेड, मतलब जो कमेटी थी लोगों की वो डिवाइडेड थी, मतलब बटी हुई थी इन इट्स ओपिनियन, अपने निर्णय देने के लिए या अपने सुझाव देने के लिए वो बटी हुई थी, मतलब एक मत नहीं हो पा रहे थे, वो लोग एक मत पे अपने सुझाव नहीं दे पा रहे थे, उनके सुझाव अलग अलग थे. ठीक है. एक बार फिर से रिपीट करता हूं. इफ द कलेक्टिव नाउन कन्वेज द फीलिंग्स ऑफ सेपरेटनेस और डिवीजन, यदि जो आपकी कलेक्टिव संज्ञा है, कन्वेज मतलब प्रदर्शित करता है, द फीलिंग्स ऑफ सेपरेटनेस, भावनाओं को, जो सेपरेटनेस जो अलग थलग करने की भावनाओं को, और डिवीजन बांटने की भावनाओं को प्रदर्शित करता है, द प्रोनाउन प्लेस्ड शुड बी इन द प्लूरल सेंस. तो जो सर्वनाम हम उस जगह रखेंगे शुड बी इन द प्लूरल सेंस, मतलब वो उसे बहुवचनीय रूप में होना होगा. ठीक है. एग्जाम्पल, द जूरी वर डिवाइडेड इन इट्स डिसीजन. एज आई टोल्ड यू, ये पास्ट टेंस रिलेटेड सेंटेंस है, उसमें कहा जा रहा है कि जूरी जो है वो
अपने डिसीजन को नहीं ले पा रही थी। जूरी के अंदर जितने भी लोग थे वो अलग अलग निर्णय दे रहे थे, तो वो एक मत नहीं हो पा रहे थे मिलके कि हमें क्या निर्णय लेना है। सो द जूरी वर डिवाइडेड इन इट्स डिसीजन, मीन्स जो भी जूरी थी वो अपने निर्णय पर बटी हुई थी, वो एक निर्णय नहीं ले पा रहे थे। ठीक है। द कमिटी वर डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन, सिमिलरली जो कमिटी थी लोगों की वो भी बटी हुई थी अपने ओपिनियन, सुझाव या निर्णय लेने के लिए। मतलब वो भी खुलकर एक मत नहीं हो पा रहे थे, एक पॉइंट पे सुझाव या निर्णय नहीं दे पा रहे थे। ठीक है। सो द कमिटी वर डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन। ठीक है। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज ऑल्सो अनदर काइंड ऑफ प्रोनाउन। ये भी एक सर्वनाम का दूसरा रूप है जिसको हम आगे पढ़ते हैं। ठीक। आर ऑब्टेन्ड by adding self to the pronouns of the singular number and selves to personal pronouns of the plural number. Example, my plus self equal to myself, it is a reflexive pronoun. Her plus self is equal to herself, it is a reflexive pronoun. Your plus self is equal to yourself, it is also a reflexive pronoun. Our plus selves is equal to ourselves, it is also a reflexive pronoun. ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी ये भी आपका एक प्रकार का सर्वनाम है। तो इसमें क्या होता है, आर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग सेल्फ टू द प्रोनाउंस ऑफ द सिंगुलर नंबर। तो ये तब बनता है जब हम सेल्फ को, यानी सेल्फ मतलब स्वयं को, सेल्फ को जब हम सर्वनाम में ऐड करते हैं जो सिंगुलर एक वचनीय नंबर का, एक वचनीय अंक का होता है। एंड सेल्व्स टू पर्सनल प्रोनाउंस ऑफ द प्लूरल नंबर। और जो सेल्व्स होता है SELVES, जो मतलब बहुत सारे सेल्स हो गए, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनके अपने अपने सेल्फ है, उनकी अपनी वो है। तो जो सेल्स होगा जब उनको हम पर्सनल व्यक्तिगत सर्वनाम में ऐड करेंगे प्लूरल ऑफ द प्लूरल नंबर, जो बहुवचनीय अंक का होगा। ठीक है। फिर से बताता हूं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी रिफ्लेक्सिव सर्वनाम ये कहता है आर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग सेल्फ टू द प्रोनाउंस। ये तब बनता है जब हम सेल्फ को सर्वनाम में ऐड करते हैं जो कि एक सिंगुलर नंबर मतलब एक वचनीय अंक का होता है। एंड सेल्व्स, जब हम SELVES सेल्व्स को ऐड करते हैं पर्सनल प्रोनाउन में, जो व्यक्तिगत सर्वनाम है ऑफ द प्लूरल नंबर, जो बहुवचनीय अंक का होता है। ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल, उदाहरण हो गया, माई प्लस सेल्फ इक्वल टू माई सेल्फ, इट इज ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सो माई क्या हो गया, बेसिकली ये सर्वनाम हो गया। ठीक है। प्रोनाउन हो गया माई यानी मेरे लिए बिलोंग करता है, सेल्फ क्या मेरा, तो माई प्लस सेल्फ हो गया माई सेल्फ मतलब मुझे, मेरा। ठीक है। तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो आपको इसमें यहाँ इंडिकेट किया जा रहा है डेफिनेशन में। ठीक। हर प्लस सेल्फ इक्वल टू हर सेल्फ, ये भी आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। हर बेसिकली बिलोंग्स टू फीमेल पर्सन। ठीक है। तो हर क्या हो गया, हर सेल्फ मतलब उसके लिए, तो वो हर हो गया और सेल्फ उसका अपना हो गया, तो ये हो गया हर सेल्फ, इट बिलोंग्स टू हर सेल्फ, ये उसको ही बिलोंग करता है। ठीक है। तो ये हो गया हर सेल्फ, इट इज ऑल्सो ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फिर आता है योर प्लस सेल्फ इज इक्वल टू योर सेल्फ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। योर मतलब तुम्हारा, तुम्हारा स्वयं का। ठीक है। तो ये हो गया योर प्लस सेल्फ यानी योर सेल्फ यानी तुम्हारे खुद का, तुम्हारे स्वयं का, तो ये आपका हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक। आवर प्लस सेल्फ इज इक्वल टू आवर सेल्फ, इट इज ऑल्सो ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो आवर क्या हो गया, हमारा, और क्योंकि हमारा है बहुत सारे लोग हैं तो यहाँ पे सेल्फ लग गया SELVES, तो आवर सेल्फ मतलब हम सबका। ठीक है। हमारा, हम सबका, तो ये हो गया आवर सेल्फ मीन्स हमारा या हम सबका, तो ये भी आपका हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है। माई प्लस सेल्फ यानी माई सेल्फ मतलब मेरा। ठीक है। ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। मेरा, माई प्लस सेल्फ मेरा हो गया यानी माई सेल्फ यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। हर सेल्फ, हर प्लस सेल्फ इज इक्वल टू हर सेल्फ मतलब उसका, तो हर सेल्फ मतलब ये उसका हो गया, स्वयं का उसका हो गया, तो ये आपका हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। योर प्लस सेल्फ इक्वल टू योर सेल्फ, ये भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। योर मतलब तुम्हारा ही है, योर सेल्फ तुम्हारा खुद का है। ठीक है। तो ये हो गया आपका योर सेल्फ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फिर आता है आवर प्लस सेल्फ इज इक्वल टू आवर सेल्फ मतलब हम सबका या हमारा। ठीक है। तो ये भी आपका हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इतना आप समझ गए होंगे। ठीक है। नाउ वी विल मूव टू सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हम कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स, महत्वपूर्ण जो आपके बिंदु हैं उस पर आएंगे। चलिए आगे जानते हैं। पहला पॉइंट क्या है, द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मैंने यहाँ पे शॉर्ट पे RP लिख दिया है। द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन टेल्स अस दैट द डूअर डज समथिंग टू हिमसेल्फ।
तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ये होता है, जो रिफ्लेक्सिव सर्वनाम है हमें ये बताने का प्रयास करता है कि जो डूअर है, जो डूअर मतलब जो करने वाला है, ठीक है, डज समथिंग टू हिमसेल्फ, वो हमेशा कुछ ना कुछ स्वयं के लिए अपने लिए करने का प्रयास करता है, ठीक है। द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन टेल्स अस, जो हमारा रिफ्लेक्सिव सर्वनाम है या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो टेल्स अस मतलब हमें ये बताने का प्रयास करता है दैट द डूअर डज समथिंग, कि जो करने वाला है वो कुछ ना कुछ करता है अपने लिए, टू हिमसेल्फ, ठीक है। तो अपने लिए कुछ ना कुछ करने वाला होता है, तो अपने लिए कुछ ना कुछ करता है जो हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बताता है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक। दूसरा आता है दे आर ऑल्सो यूज टू ले एम्फेसिस ऑन द प्रोनाउंस, ठीक है। दे आर ऑल्सो यूज टू ले एम्फेसिस ऑन द प्रोनाउंस, इसका मतलब ये होता है कि ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, तो ये बेसिकली उसके लिए प्रयोग किया जाता है जब आप किसी के सर्वनाम के प्रति एम्पैथी प्रकट करना चाहते हैं। एम्पैथी मतलब कृतज्ञता, थोड़ा सा आपको उसके प्रति इमोशनल होना है, उसके प्रति कृतज्ञता या धन्यवाद अगर आपको पे करना है तो उसके लिए ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। दे आर ऑल्सो यूज्ड, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम प्रयोग में लाते हैं टू ले एम्फेसिस ऑन द प्रोनाउन, सर्वनाम पे जब हमें अपनी एम्पैथी या अपनी कृतज्ञता या अपना धन्यवाद प्रदर्शित करना होता है तब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को प्रयोग में लेके आते हैं, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन अनदर क्लास, आगे की जो क्लास होगी उसमें हम इसको पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, this was the general English speaking part 51 in which I tried to explain you about behavior of pronouns, especially with definitions and examples, some forms of pronouns like reflexive pronoun, important points, and another pronouns will also come forward. We will read about that. So students, kindly read them, practice them, and try to use them in your English language, and ultimately what will happen, your confidence will boost up, your personality will groom, and ultimately you will become a perfect and fluent English speaker in front of another person. So students, thanks for your valuable and precious time. Have a nice day.